हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th, सब्जेक्ट जियोग्राफी एंड चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नेम है एग्रीकल्चर। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द फाइबर क्रॉप्स, then rubber non-food crops, then already we have discussed horticulture crops, then major coffee, tea and sugarcane. And in the last two lecture we have discussed the types of farming, kharif, rabi season, cropping pattern. All these topic we have discussed. So today we are taking the next topic, that is the technological and institutional reforms in Indian agriculture. Clear? So it is again very important topic of this chapter. So first of all, what is the technological and institutional? So technological and institutional reforms means the changes in the farming pattern, and which are the major problems of the Indian agriculture after independence. All those problems has been find out and resolved by Indian government. So major reforms has been taken up by Indian government after 1947. So institutional reforms mean that is related to agricultural sector, and how to boost the agriculture sector, and major problems of this sector has been resolved. And technological reforms mean related to the technology, related to the banking system, related to the different types of schemes which were launched by Indian government for the farmers and for the development of Indian agriculture. So first one, what is about the technological and institutional reforms of Indian agriculture. So the major reforms has been taken. First of all, development of the sources of irrigation system, because Indian agriculture is totally depend over monsoon, that is the rainfall. So after 1947, the development of irrigation, canal, pond irrigation has been developed with the introduction of the multi-purpose river project, as we have studied in the third chapter of geography, that is the water resource, in which we study about the dams. Clear? So with the development of the dams, there is development of the sources of irrigation. And again, why? Because of the Indian agriculture is depend upon the monsoon and the natural fertility. And after that, use of HYV seeds. Clear? HYV seeds, fertilizer, insecticide and pesticide are already using in the Indian agriculture. And already all we know that the near about the 68% of the Indian population, that is totally residing in the rural area, and the main occupation, that is the agriculture, and only 32% people are living in the urban area. So that is again the major problem, the government which have to tackle that problem. So different types of the problems during that period. So after independence 1947 के बाद collectivism, first one is the collectivism या collectivization means सामंतवाद. क्या है सामंतवाद? what comes under the collectivization? So इसके अंदर the whole land is occupied by the one farmer, that is called as the samant, and under his will the rural people or the poor people who are working in the fields and doing the agricultural activity, doing the animal husbandry, so that is called as the collectivization or the collectivism, that is called as the सामंतवाद. तो इसमें सामंतवाद के अंदर सारे के सारे लोग उसके एक पर्सन के अंडर काम करते हैं, और वही जो है आगे सरकार को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है, और लोगों को उनको जो भी उनकी वेजेस हैं जो भी वो उनको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ द कलेक्टिविजेशन. Then next one is the consolidation of the land holding. What is the consolidation of the land holding? Before 1947, the major problem of the Indian agriculture, that is the fragmentation of land holding. Fragmentation of land holding. What is this? What is the fragmentation of land holding means? For example, किसी पर्सन के 4 एकड़ लैंड है, दैट इज़ ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस. अगर उसके 2 सन होते हैं तो 2 एकड़ जो है उन दोनों में डिवाइड हो जाती है. तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम्स किसी पर्सन का, फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इसका 1 पीस ऑफ लैंड इज़, ये है कि इसका 1 पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है और 1 पीस ऑफ लैंड यहाँ पे है. तो ये क्या है, ये काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी फार अवे है, एक दूसरे से काफ़ी दूर है ये तीनों ही पीस ऑफ लैंड. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द fragmentation of land holding, which is the main
problem of the Indian agriculture. What happened after 1947, that is the consolidation of land holding. For example, किसी पर्सन के तीनों पीस ऑफ लैंड ये हैं, तो उसको क्या किया, उसके बिल्कुल उसके रिजाइडिंग प्लेस के पास ही उसको 3 पीस ऑफ लैंड जो हैं वो प्रोवाइड किए गवर्नमेंट ने. दैट इज कॉल्ड एज द कंसोलिडेशन ऑफ the land holding. Consolidation of land holding means to provide the land near his residence area or near his house. Where, so what happened due to this, the production will increase and the farmers can produce more and more crops. Clear? Then cooperation, clear, and evolution of the jamidari system. Clear? That is very important point अंडर द रिफॉर्म, दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम को खत्म करना. अब जमींदारी सिस्टम मतलब एक जमींदार होगा और वही जमींदार क्या करेगा, पूरे के पूरे विलेज के ऊपर या पूरी की पूरी जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर उसका क्या होगा, ऑनरशिप होगी. और वही पर्सन जो है रूरल पीपल या जो लेबर है उससे काम करवाएगा. बट द लेबर्स डोंट हैव देयर परमानेंट एग्रीकल्चर लैंड. क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. और ये जमींदारी सिस्टम 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू जो है वो इंडिया में लॉन्च किया गया था. और सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया था जमींदारी सिस्टम. क्लियर? तो 1947 के बाद सबसे पहले इस जमींदारी सिस्टम को क्या किया गया, ख़त्म किया गया. अंडरस्टैंड? और ये जो है उसके बाद द मेजर वन इज दैट लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स मीन्स हर लोगों को, हर पीपल को, चाहे वो रूरल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे बीपीएल फैमिली का, चाहे एपीएल फैमिली का, चाहे रिच क्लास है, चाहे पुअर क्लास है, जिसके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उसको भी इस लैंड रिफॉर्म्स के अंडर क्या किया गया, लैंड प्रोवाइड की गई. दैट इज कॉल्ड एज अ लैंड रिफॉर्म. और ये लैंड रिफॉर्म जो है हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुई थी, 1951 टू 1956. ये हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड है, 1951 से लेकर 1956 तक. क्लियर? तो इसमें जो हमारा मेन फोकस क्या था, दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स. क्लियर? और इसी के अंडर जो है वो हमारा कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, अचीव हुआ. तो लैंड रिफॉर्म्स के अंडर किसको मेन पॉइंट क्या था लैंड रिफॉर्म्स के अंडर, दैट इज द कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग. तो मेजर दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. क्लियर? ये हैं हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जिसके अंडर सबसे वन है कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स. ये किसके अंडर आएंगे, दैट इज द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंडर. अब हम बात करेंगे दैट इज द सेकेंड वन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंडर हमारा सबसे पहले जो आता है दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. मीन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि कैसे हम इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन, और कैसे इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. तो क्या हुआ टेक्नोलॉजिकल, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. तो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंडर इंडियन एग्रीकल्चर में 1960s एंड 70s में एक रैपिड चेंज हुआ इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में, और उस रैपिड चेंज को क्या बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति. अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या यूज़ किया, HYV सीड्स यूज़ किए, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए, फर्टिलाइज़र यूज़ किए. क्लियर? उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशिंग मशीन्स, हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये सारे के सारे हमने यूज़ किए. तो ये किस में चेंजेस हैं, ये हमारी हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स. ठीक है? टेक्नोलॉजी में हमने इंप्रूवमेंट की. तो इसमें क्या हुआ, 1960 और 70 में ग्रीन रेवोल्यूशन आई हमारे कंट्री में, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डे बाई डे क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी. उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अगेन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की वजह से हमारे कंट्री में एक और रेवोल्यूशन आई जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन. और व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्क से, क्योंकि मिल्क का कलर व्हाइट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट रेवोल्यूशन. तो व्हाइट रेवोल्यूशन से क्या हुआ, मिल्क की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुई. और मिल्क की प्रोडक्शन में इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने फोकस किया दैट इज ऑन द एनिमल हस्बेंड्री की. हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, ताकि हमारी जो है व्हाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क की प्रोडक्शन को भी इंक्रीज किया जाए, ताकि लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है और बेसिक नेसेसिटी है उनको फुलफिल किया जाए. क्लियर है? तो इसको ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन को क्या नाम दिया गया था, ऑपरेशन फ्लड. ओके? तो ये 1970 में आया था और 1960-66 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन आई. उसके बाद अब टेक्नोलॉजिकल क्या हमने वहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स की. तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1980 और 1980 और 90 के बीच में एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. और इसके अंडर क्या था, हमने कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स किए. और टेक्निकल रिफॉर्म्स में हमने क्या किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज अ क्रॉप इंश्योरेंस. क्रॉप इंश्योरेंस, अब जैसे आजकल हम एक टर्म सुनते हैं लाइफ
इंश्योरेंस। क्लियर, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स LIC जिसको हम बोलते हैं, लोग बेसिक प्लान्स लेते हैं अपनी लाइफ को, एक्सीडेंटल इंश्योर अपने आप को प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्रॉप का भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब क्रॉप का इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्राउट, मतलब सूखा पड़ जाए तो क्रॉप का इंश्योरेंस पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने 1 एकड़ के ऊपर क्या किया, एग्रीकल्चर ग्रो की, और उसने 10 लाख का क्या करवा लिया, इसका क्या करवाया, उसका इंश्योरेंस करवाया। और अगर मान लो वो ड्राउट की वजह से, फ्लड की वजह से, साइक्लोन, फायर, डिजीजेज की किसी भी नेचुरल प्रोसेस की वजह से अगर वो खेती जो है, उसकी क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। क्लियर, एक तो पहला क्या हो गया, टेक्निकल के अंडर क्या आ गया, दैट इज़ द क्रॉप इंश्योरेंस। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। अब ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट मीन्स लोगों को, जो रूरल फार्मर्स हैं उनको HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड परचेज करने के लिए किस चीज़ की फैसिलिटी मिल जाए, लोन की फैसिलिटी मिले। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, वो भी लोन के लिए बनाई गई। बैंक्स रूरल एरिया में एस्टेब्लिश किए गए, वो भी लोन की, ताकि उनको कम रेट्स के ऊपर लोन मिल सके, ताकि फार्मर्स जो हैं वो अपनी एग्रीकल्चर डिमांड को फुलफिल कर सकें। क्लियर। उसके बाद टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंडर किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए, जैसे हमारा ATM कार्ड होता है सेम वैसे ही फार्मर्स का भी एक कार्ड बनता है, उसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे किसान क्या ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। क्लियर। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। फॉर एग्जाम्पल, किसी फार्मर ने अगर इंश्योरेंस करवाया एग्रीकल्चर स्कीम के अंडर, तो उसको गवर्नमेंट जो है या पर्टिकुलर कंपनी या एजेंसी जो है वो उसको जो भी मनी है वो प्रोवाइड करेगी। उसके बाद कई तरह के वेदर बुलेटिन स्टार्ट किए गए, ताकि फार्मर्स को वेदर का पता चलता जाए कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कब रेनफॉल होगी। उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए चलाए गए। क्लियर। DD1 के ऊपर, DD नेशनल जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद रेडियो टेलीविज़न के ऊपर कई तरह के प्रोग्राम्स जो हैं, जिससे एग्रीकल्चरल न्यूज़ स्टार्ट की गई, एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्टार्ट हुए, ताकि फार्मर्स अपनी प्रॉब्लम को वहाँ पे डिस्कस करें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड देन दे कैन पिक अप द मोर एंड मोर बेनिफिट। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। MSP अब क्या होता है, MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई भी क्रॉप को परचेज करती है तो सबसे पहले उसका MSP क्या करती है, फाइनल करती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस का MSP गवर्नमेंट ने फाइनल कर दिया 2400 रुपीज़ पर क्विंटल। क्लियर। तो 100 किलो के गवर्नमेंट कितने पैसे देगी, 2400 रुपये देगी। तो दैट इज़ द MSP। उसके बाद कई तरह के गवर्नमेंट ने मिडल मैन को वहाँ से हटाया, ताकि जो प्रॉपर बेनिफिट है, मंडीज़ की एस्टेब्लिशमेंट की गई। क्लियर। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कम्स अंडर द टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। तो ये हमने डिस्कस किए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को एक बार हम जल्दी से डिस्कस कर लें, क्या हमने डिस्कस किया अभी। सबसे पहले कलेक्टिव कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कॉर्पोरेशन, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स। क्लियर। और टेक्निकल के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले दैट इज क्रॉप इंश्योरेंस। उसके बाद लोन फैसिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, देन वेदर बुलेटिन, then different types of program related to the agriculture, radio television program, minimum support price has been launched। उसके बाद वन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द भूदान और ग्रामोदान मूवमेंट। क्लियर। अब भूदान और ग्रामोदान मूवमेंट क्या है, तो महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे जो है इसका फादर है भूदान और ग्रामोदान मूवमेंट का। विनोबा भावे जो है ये फर्स्ट रेसिपेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, फर्स्ट रेसिपेंट हैं किसके, इनको फर्स्ट रेसिपेंट हैं किस चीज़ के, दैट इज द एशियन नोबेल प्राइज, एशियन नोबेल प्राइज। क्लियर। एशियन नोबेल प्राइज, एक एशिया का भी नोबेल प्राइज होता है, तो वो विनोबा भावे को मिला है। तो वो फर्स्ट रेसिपेंट, फर्स्ट इंडियन थे, मतलब जिनको फर्स्ट इंडियन हु रिसीव द एशियन नोबेल प्राइज। क्लियर। तो उसको हम, ये विनोबा भावे जी थे, और महात्मा गांधी ने इनको अपना स्पिरिचुअल हेयर जो है वो नॉमिनेट किया था, एंड दे पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, एंड they also more motivated with the Gandhiji one concept, that is the Gram Swaraj movement, and after the martyrdom of Gandhiji they launched the different types of the program. So after Gandhiji death, they once they was delivering a lecture at the Andhra Pradesh, and some poor farmers demanded for land, then they assured them they will talk to the government
regarding this matter, that is the provision of land. So what happened, suddenly Shri Ramchandra Reddy, एक person है आंध्र प्रदेश से ही, they offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villages. उनकी 80 एकड़ लैंड किसके अंडर डिस्ट्रीब्यूट की गई, 80 लैंडलेस विलेजर्स जो हैं, तो उन्होंने वो एक क्या की, दे ऑफर्ड, आफ्टर दैट दिस एक्ट वाज नोन एज द भूदान एक्ट और द भूदान मूवमेंट. तो इसके अंडर क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफरिंग द लैंड टू द लैंडलेस पीपल. ओके, एंड आफ्टर व्हाट हैपेंड, सम जमींदार ओनर्स विलेजर्स दे डिस्ट्रीब्यूटेड सम विलेजेस अमंग लैंडलेस. तो उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, जमींदारों ने कुछ गांव भी दान कर दिए, किसको ऑफर किए, लैंडलेस पीपल को. दैट इज कॉल्ड एज द ग्रामो दान या ग्राम दान. क्लियर. सो दैट इज कॉल्ड एज द bloodless revolution and Gramodan and Bhudan movement under the leadership of Vinoba Bhave. Okay, उसके बाद है contribution of Indian agriculture to the national economy and output. So simply first of all understand this table. So first of all sector years 2013, 14 to 15, 16 agriculture, industry and service. तो बेटा 14 में the major GDP that is produced by the Indian agriculture, that is 4.2%, and it decreased in 14-15 and again that is very low in 15 and 16. Clear. So means the role of the Indian agriculture is declining day by day. That is more important point, that is the negative point for the development of our economy. So what happened, when the economy will grow in a better way, when these three sectors, one is agriculture, second one is industry and third one is the service sector, they can one by one playing a better role with one and another, then our economy will become a developed economy. So this is the whole introduction, that the agriculture is the backbone of Indian economy, all we know that, and the GDP, that is the gross domestic product, has registered a declining trend from 1915 onward in the field of the agriculture, and 2010 to 11 near about 52% people are employed in the agriculture sector, but employment is increasing, but that is the hidden unemployment. Clear. Hidden unemployment we have discussed in the economics part. Then the share of the agriculture in the GDP, it is a serious concern because it is declining day by day. So what will happen, हम कैसे GDP के शेयर को एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव टेकन डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्ट्स. सो क्या किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लॉन्च की गई, एक यूनिवर्सिटी हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना, इस तरह से कई हर स्टेट्स की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं. वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन किए गए हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्ट हो रहा है, एंड इंप्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड. सो गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ better role in the field of agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure is again the major work done by the government. So government is again providing the mechanical support as well as the technical support to the farmer. Clear. So these are the major points which are taken up by the government for increasing the share of the agriculture in the field of GDP. So it is again one of the important question, that what is the role what is the main point which are launched by the government to increase the agriculture sector's role in the GDP. Clear. So these are the main point. Okay, so now we are going to just discuss or briefing these point in a quick way. So major points of the today's lecture. The first one, institutional reforms. तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखिए, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया 1951 एंड 56 में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लॉन्च हुआ. उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम हुआ, 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन आई. उसके बाद इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्रॉप इंश्योरेंस हमने डिस्कस किया, क्रॉप्स लोन डिस्कस हुए, किसान क्रेडिट कार्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो ये हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे. उसके बाद आया था भूदान एंड ग्रामोदान मूवमेंट. तो ये पिक्चर है विनोबा भावे की, और विनोबा भावे कौन से, फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ एशियन नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द एशियन नोबेल प्राइज. और एशियन नोबेल प्राइज का सेकंड नेम है, दैट इज द रमन
मैग्सेसे अवार्ड। ओके, रमन, मैं एक बार अच्छे से लिख दूं, रमन मैग्सेसे अवार्ड। तो ये फर्स्ट रेसिपेंट इंडियन थे, और ये अवार्ड जो है अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी को भी मिल चुका है। दैट इज़ द रमन मैग्सेसे अवार्ड। आचार्य विनोबा भावे इनका नेम है। ये गांधी जी के स्पिरिचुअल हेयर थे। तो विनोबा भावे के बारे में, दे आर विनोबा भावे नोन फॉर द ग्रेट मोरल क्वालिटीज एंड ही इज सेल्फलेस इन द भूदान मूवमेंट एंड बट हिज स्पिरिचुअल क्वालिटी वर नॉट appreciated. His original name, very important point, his original name was Vinayak Narahari Bhave. His mother Rukmani Devi was a very religious person. At a very young age, Vinoba Bhave was deeply interested in mathematics, and again he was the recipient of Raman Magsaysay Award, and he was the first Indian who received firstly, that is the Raman Magsaysay Award, which was known as the Nobel Prize of Asia. Clear? Nobel Prize of Asia. Understand? So this is the whole of about the today's lecture. So today we have discussed the technological and institutional reforms, then Bhudan and Gramodan movement, and contribution of agriculture to the national economy, and what are the major steps to be launched by the Indian government to increase the agricultural role in the GDP. Then tomorrow we will discuss food security, and the last topic, that is the impact of globalization on agriculture. Okay, thank you.